What is the difference? Data science versus data engineering. What is on the top right now in terms of job? उसने तो इंडस्ट्री नहीं देखी है और काफी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हो? आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। और अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना दे रहे हो महीने का? What's your last advice to all those? Alright guys, so welcome back once again. If you're somebody new to my channel, my name is Nikhilesh and at the moment I'm here with Sukanya. She is currently studying masters in what? Web and Data Science from the University of Koblenz. And before I ask you my question, why don't you give my audience a little bit of your introduction, academic background thoda? Yeah, sure. So hi, my name is Sukanya. I'm from Kolkata, India. So before coming to Germany, I was working as a system engineer in Tata Consultancy Services for 2.5 years, and then I moved to Germany to pursue masters in Web and Data Science from the University of Koblenz. और bachelor's में score कितना था? Bachelor's में I had a GPA of 8.2. अच्छा, nice. It's been 2.5 years now. Yeah. कैसा लग रहा है? How is life here as a data scientist or want to be a data scientist? Yeah, so I mean, life in Germany is good. Like, it's a very different kind of lifestyle that you lead here than in India. So overall experience है, like, Right. very different kind of experience. जो आप once you're here, only you can go through that kind of exposure. बहुत लोगों से मिलते हो, उनसे सीखते हो, culture सीखते हो, बहुत सारी चीजें. There are a lot of learnings throughout this journey. So before I ask you my academic question related, Yeah. मेरे को ये बताओ कि in the field of data science, right? What kind of jobs are you looking forward to have? And second part of the question is, उसके लिए क्या technical skills की जरूरत पड़ेगी? The kind of job that I am looking for is a data engineer kind of role. मैं अभी भी data engineer वाला job ही करती हूँ. I can also go for data analyst kind of job या data scientist. So इनका skill set is like data science के ऊपर आपका background होना चाहिए. आपको business knowledge भी थोड़ी बहुत चाहिए अगर आप analyst के roles में जाना चाहते हो. Visualization tools आनी चाहिए जैसे कि Power BI हो गया, Tableau हो गया, SQL आपको अच्छे से आना चाहिए, Python हो गया. तो ये सारा चीज़ों पे अगर आपने काम किया है तो आप ऐसे लाइंस में जा सकते हो. And have you mastered all these tools? What you're talking about? क्या अभी भी सीख रहे हो? या सो मेरे वर्क एक्सपीरियंस थी पहले से और अभी मैं स्टूडेंट जॉब्स भी करती हूँ इन सारे डोमेन्स में ही, तो मेरे एक्सपीरियंस हो गए हैं ऑलरेडी इन दिस. बट इट्स अ लाइक आई सेड, इट्स अ लर्निंग जर्नी. तो आप रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हो बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे. तो लर्निंग इज देयर फॉर श्योर. Do you still remember कि कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था? सो फॉर मी मेरा प्लानिंग बहुत ही स्पॉन्टेनियस था. सो आई अप्लाइड टू 5 universities and I got to 3 of them. One of them is the University of Paderborn, then there is this SRH University at Heidelberg, and the another one is this University of Koblenz. दो पब्लिक यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी. yeah. Why did you choose University of Koblenz for data science over Paderborn का कोर्स? Paderborn का कोर्स was कंप्यूटर साइंस के ऊपर, बट उसमें स्पेशलाइजेशन थी डेटा साइंस का. बट मुझे टोटल फोकस डेटा साइंस के ऊपर ही चाहिए था, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस से किया. एंड इनका कोर्स स्ट्रक्चर वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि ये थोड़ी ज़्यादा अच्छा है टुवर्ड्स माय प्रोफेशन, तो मैंने ये वाला. और अभी जो कोर्स पढ़ रहे हो उसमें स्पेशलाइजेशंस क्या कर सकता है एक स्टूडेंट? ये टोटली कोर्स डेटा साइंस के ऊपर डेडिकेटेड ही है एग्जैक्टली फ्रॉम डे वन. यस ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक अ ब्रॉडर टॉपिक लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया या वेब इंजीनियरिंग हो गया, ऐसा नहीं है ना. लाइक इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पैडरबॉर्न उनका था कि कंप्यूटर साइंस एज अ होल था, एंड देन यू कुड हैव डन सम स्पेशलाइजेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. बट ये टोटली फोकस था डेटा साइंस के ऊपर फ्रॉम डे वन. ऑल्सो पैडरबॉर्न का जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है वो पूरा रिसर्च बेस्ड है. ठीक है, सो इट्स अ रिसर्च हेवी, नॉट सो मच ऑफ प्रैक्टिकल साइड, बिकॉज 4 दिन पहले ही मैं वहीं था. And I interviewed another student on computer science actually, so that's why. Okay, अभी मेरे को ये बताओ कि in terms of किसी को अगर एडमिशन की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? तो आपके हिसाब से जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करता है तो उसको क्या दिमाग में रखनी चाहिए? फर्स्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स स्ट्रक्चर कैसी है. अगर लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कोर्सेज में आप जैसे मैं डेटा एनालिस्ट के टाइप के जॉब्स ढूंढ रही हूँ, तो मुझे बिजनेस नॉलेज भी चाहिए. तो इस कोर्स में बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स भी थे, लाइक एज इलेक्टिव्स एंड स्टफ. तो आप अपने हिसाब से कि आपको कौन से लाइन में जाना है, आपके लिए कौन सी कोर्स ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो उस हिसाब से आप रिसर्च करो. ओके. अभी 2024 में
आप मार्केट को कैसे देख रहे हो, लाइक व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर? यू गोना ग्रेजुएट राइट Yes. बहुत जल्दी, आप Yes. अपना थीसिस ऑलमोस्ट एंड पे हो, नहीं, मैं Start कर रहे हो, started, yeah. राइट? लेट्स से लाइक गिवन 6 महीना आगे, इन 6 months you will complete hopefully your thesis Yes. and you'll approach the market. Yeah. तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में? आर देयर जॉब्स अवेलेबल या नहीं अभी, कि आप स्टूडेंट को एडवाइस दो कि यार अभी 1 साल रुक जा, सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं चल रही, क्या सीन है तुम्हारे हिसाब से? टू बी ऑनेस्ट, लाइक अभी मैं वर्क स्टूडेंट जॉब्स करती हूँ, तो वर्क स्टूडेंट में मैंने देखा है इट इज़ अवेलेबल अगर इफ़ यू हैव द राइट काइंड ऑफ स्किल सेट एंड इफ़ यू आर डेडिकेटेड ऑफ कोर्स एंड यू आर अप्लाइंग कंटिन्यूसली, देन फॉर श्योर देयर आर पार्ट टाइम जॉब्स. बट इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम जॉब्स मुझे लगता है रिसेशन की वजह से थोड़ी बहुत मार्केट इज़ नॉट डूइंग दैट वेल. तो उस टर्म में आई विल से इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन दिस मार्केट. तो फिर मतलब आर यू आल्सो सेइंग कि थोड़ा रुक जाओ, 1 साल 2 साल बाद में आना, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, बिकॉज आप पढ़ाई स्टार्ट करते करते तो नहीं कर हाँ, दोगे ये ना, भी जॉब है। मार्केट में नहीं जाओगे तो राइट. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक योर टाइम एंड एक्सपीरियंस से आप क्या पता, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो वो लोग आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इनटू फुल टाइम जॉब्स. सो इट्स टोटली ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू यू नो ब्लेंड योरसेल्फ या अपस्किल योरसेल्फ, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट यू डिड नॉट स्ट्रगल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप और ये सब? लकीली नो. You every Yeah. time you applied you Yeah, had yes, something. yes. अभी कुछ काम कर रहे हो राइट? यस, आई एम वर्किंग एज अ वर्क स्टूडेंट अच्छा. बीएसएफ में. और क्या काम रहता है विदाउट टेलिंग द प्रोजेक्ट का डिटेल्स, सेंसिटिविटी, बट लाइक व्हाट इज योर वर्क? It's more like ETL development, pipeline building, like total data engineering tasks ही मैं करती हूँ. राइट. Yeah. तो जो डेटा इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, Yeah. जैसे कि मैग्देबर्ग यूनिवर्सिटी में भी है डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स, Yeah. और कुछ यूनिवर्सिटी में जर्मनी के डेटा साइंस का कोर्स है. तो इनमें व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन आई वाज टू गो फॉर डेटा साइंस वर्सेस डेटा इंजीनियरिंग? तो क्या सीखूंगा मैं? So basically ये data science के डोमेन के अंदर ही ये सारे related terms आ जाते हैं, right? But they are very different from each other. They are like sounding same, like analyst हो गया, scientist हो गया, engineer हो गया, सारे terms आप बहुत easily ले सकते हो, पर सबका job अलग है. Like analyst का काम mostly होता है towards visualization, engineer का काम हो गया towards pipeline building and Yeah. cleaning data and all those kinds of stuff. और data scientist का job हो गया algorithm, machine learning and all those kinds of things comes into the data scientist वाला part. So it's a very broad topic. तो आपके इंटरेस्ट के Right. ऊपर जाता है कि आप कौन से वाले चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है. So if you were to prioritize 1, 2 and 3, Yeah. कैसे रखोगे? What is on the top right now in terms of job? Yeah, for me, data engineer for sure, and then data analyst, and then data scientist. Really? Yeah. डेटा साइंस को तुमने नीचे थर्ड में डाल दिया? Scientist वाला job towards it's more focused on machine learning algorithms and all those kinds of things. But मेरा particularly interest is towards थोड़ा business kind या visualization, all those kinds of things. तो मेरा Okay. interest थोड़ा different है. और आपने आने से पहले काम करके आए थे राइट? Yes, What yes. was your work? Was it different to what you're doing now? Very different from what I used to do. So I have completely switched the domain. I used to work Okay. as a system engineer, software development towards मेरा job था प्रोफाइल. अभी मैं बिल्कुल ट्रांजिशन करके डेटा तो आप इंजीनियर में आ गई. 2 साल जो काम किया इंडिया में, उससे कोई स्किल यहाँ यूज नहीं हो रहा है कि हो रहा है? आई मीन यू कैन नॉट जज ऐसे. एक वर्क एक्सपीरियंस तो मेरा हो गया था जिसमें विच हेल्प्स मी इन अदर लाइक. आपके फाउंडेशन बिल्ड हो गई या है right? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ. एग्जैक्टली या. राइट. तो अगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू विद दिस Yeah. क्वेश्चन इज कि अगर कोई फ्रेशर है, आप तो वर्क एक्सपीरियंस लेके आए, इतना Yeah. सब कुछ दुनियादारी देख के आए, बट अगर कोई फ्रेशर होगा हाँ. तो उसने तो इंडस्ट्री नहीं देखी है और Hmm. काफी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हो? मैंने देखा है ऐसे लोग भी जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं एंड जस्ट ग्रेजुएट करके भी आते हैं. वो इधर आके अपना स्किल्स बिल्ड करके देन इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट. मैं बोलूँगी बिना एक्सपीरियंस के आई विल सजेस्ट कि सब एक्सपीरियंस लेके आओ. बट ऐसा नहीं है कि इधर आके आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेंगे या आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. और डेटा इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स बताना, क्या क्या पढ़ रहे हो आप? या श्योर. डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वेब साइंस हो गया, बिकॉज मेरा कोर्स वेब एंड डेटा साइंस है. तो वेब साइंस के भी कोर्सेस है, डेटा साइंस के भी कोर्सेस. और कितने सेमेस्टर का प्रोग्राम है ये? रिटन में तो 2 years प्रोग्राम है. ओके. But अभी we are लोग going- एक्सटेंड कर लेते हैं Yes, for लेकिन. sure. Yeah. अच्छा अच्छा अच्छा. देयर इज नो कंपल्शन या प्रेशर नहीं है जैसे कि आपको इतने इंडिया टाइम में में ऐसा कर. होता है ना कि एक हाँ. टाइम फ्रेम के अंदर यू हैव टू हाँ. फिनिश अप. तो इधर ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ ईज से आप अपना कोर्स कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो. तो ऐसा Right. लाइक देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. और कोर्स 120 क्रेडिट्स का है. यस, अभी कितना खत्म हो गया? 90 मेरा ऑलमोस्ट. या ऑलमोस्ट. आई मीन 90 भी नहीं हुआ है. आई मीन आई जस्ट हैव वन सब्जेक्ट Subject लेफ्ट. left. या या. So that should be what,
3 क्रेडिट का ही होगा नहीं और नहीं क्या है? नहीं नहीं 6 5 का credits, होगा yeah. हाँ 6 का होगा वही 6 का, हाँ 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 so you almost. still like at 84 right now Yeah. so 84 क्रेडिट्स खत्म कर चुके हैं जी एक सब्जेक्ट करेंगे तो 90 क्रेडिट टेक्निकली दैट विल ऑफिशियली शी विल कंप्लीट हर 3 सेमेस्टर्स yeah. राइट हाउ मच इज योर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अभी अभी it's 235 euros. एंड एवरी सेमेस्टर यू पे 235 यूरो Yes. और अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना दे रहे हो महीने का So जब मैं आई थे at that point of time मतलब इतना नहीं था but post inflation बहुत ज़्यादा prices high हो गई इधर भी ना smaller city like Koblenz भी living मतलब cost काफ़ी high हो गया it's almost like आपकी lifestyle के ऊपर भी depend Yeah. करती है for me around 700 to 800 per month for sure. और पार्ट टाइम जॉब से जितना जो कमा रहे हो उससे कुछ बच रहा है या इसी खर्चे में निकल जा रहा है सब Okay. I mean बहुत difficult है. बिकॉज लोग सिर्फ एक ही साल का ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आते हैं Yes. राइट ईयर नंबर 2 3 4 whatever Yeah. they choose to stay as long as they want to be a Yeah. student Yeah. बट सबको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है हर साल का राइट प्रीटी मच यहाँ पे नहीं if you have a job then job contract कॉन्ट्रैक्ट enough चल जाता होती है है आपको. राइट Yeah. राइट व्हाट्स योर लास्ट एडवाइस टू ऑल दोस डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट डेटा इंजीनियर्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ इंडिया से आ रहे हो मतलब इस डोमेन में थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आना इम्पोर्टेंट होगा जर्मन बिल्कुल सीख के आना Yeah. बिकॉज लाइक जॉब के लिए इतनी नेसेसरी नहीं है बट फॉर द अदर फॉर इंटरेक्टिंग विद पीपल नेटवर्किंग इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होता है तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे से रिसर्च करके आओ कि किस कोर्स में जाना है या ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स. Cool. Make sure that you check the description of this video. Thank you so much for joining. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना and make sure that you watch the other videos what I've made with other students as well. Take care. See you guys next time. Bye bye.